السلام علیکم ناظرین، پاکستان ادبی فورم میں خوش آمدید۔ ہم ہمیشہ کی طرح اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے مشہور صنعتی شہر گوجرانوالہ کی تاریخ پر مبنی معلومات پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ گوجرانوالہ شمالی پنجاب، پاکستان کا ایک صنعتی اور زرعی ڈویژن ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے گوجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد ملک کا چوتھا بڑا ڈویژن ہے، جس کی آبادی 1,60,00,000 سے زیادہ ہے۔ اس کا پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی میں حصہ 5% ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے تحریک صوبہ گجرستان / گوجرانوالہ بہت سرگرم ہے۔ گجرستان تحریک کے مرکزی رہنما گل رحمان ہمدرد کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دیا جائے اور گوجرانوالہ ڈویژن کو بھی گوجرانوالہ صوبے کا درجہ دیا جائے۔ اس سے گجر قوم کو پاکستان میں اپنی شناخت مل جائے گی۔ تاریخ کے حوالے سے امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق گوجرانوالہ کو گوجروں نے آباد کیا، جو کشمیر کے پہاڑوں پر آباد تھے، اور بعد میں ایران کے شیرازی قبیلے نے اس شہر کا نام خانپور سانسی رکھا، تاہم بعد میں اس کا پرانا نام بحال ہو کر گوجرانوالہ ہو گیا۔ منشی گوپال داس اور عطا محمد تاریخ گوجرانوالہ میں اور عزت اللہ تاریخ ہمارا پنجاب میں اپنی تحقیقات کے ثمرات یوں سامنے لاتے ہیں۔ اسی مستند تاریخ سے آبادی اس کی صحیح معلوم نہیں ہوئی۔ روایت ہے کہ 500 برس گزرے جب اس کو مسمی خان جاٹ عرف ساہنسی نے بصورت گاؤں آباد کر کے اس کا نام خانپور ساہنسی رکھا۔ صدیوں پیشتر اس شہر کی بنیاد خان جان ساہنسی نے رکھی، تو اس وقت یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ خان ساہنسی کے نام پر ہی یہ قصبہ مدت تک خانپور ساہنسی کہلاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نواحی دیہات کے گوجروں، جو جاٹوں کا ایک قبیلہ تھا، اور خان جان ساہنسی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ خان ساہنسی نے اپنی ریاست کو وسعت دینے کے لیے ارد گرد کے گوجر جاٹوں کے دیہات کو برباد کر دیا۔ گوجر سرداروں نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جتھا بندی کی اور مختلف گروہوں اور جتھوں میں تقسیم ہو کر خان جان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ خان جان ساہنسی کی فوج اور گوجر گروہوں میں جگہ جگہ تصادم ہونے لگے۔ گوجروں نے آئے دن خانپور پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ گوجروں اور ساہنسیوں کے درمیان قریباً 5 سال تک یہ خونریز تصادم جاری رہے، جن کی وجہ سے ساہنسی سردار کی شہر پر گرفت کمزور پڑ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر گوجر جاٹوں نے خانپور ساہنسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک روایت کے مطابق چھچھریالی موجودہ فرید ٹاؤن کے نوا میں ایک خونریز جنگ ہوئی، جس میں خان ساہنسی کو شکست ہوئی اور وہ خانپور کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ گوجر جاٹوں نے خانپور پر قابض ہونے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا۔ خانپور سے یہ شہر گوجرانوالہ بن گیا۔ گوجروں نے ساہنسیوں کی زمینداریوں کو بھی قائم رہنے دیا۔ گوجر راج میں اگرچہ ساہنسی کافی تعداد میں آباد تھے، مگر پھر کبھی ان کے گوجروں سے تصادم کی نوبت نہ آئی۔ مغل حکومت میں گوجرانوالہ ایک گوجر ریاست کی حیثیت سے مغل سلطنت میں شامل رہا، اور گوجر سردار باقاعدہ طور پر مغل صوبیدار کو خراج ادا کرتا رہا۔ مغل سلطنت کمزور ہوئی اور پنجاب میں طوائف الملوکی پھیل گئی، تو گوجر سردار خواہش کے باوجود بھی اپنی ناچاکیوں کی بنا پر گوجرانوالہ میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہ کر سکے۔ گوجروں میں باہمی اختلافات دیکھ کر کوٹ باز خان کے سردار باز خان نے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور گوجرانوالہ کے نواحی علاقوں اور دیہات کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ سردار باز خان نے درجنوں دیہات کو تباہ و برباد کر دیا اور لوٹ لیا۔ بعد میں سردار باز خان نے اپنی تباہ کاری کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے گوجرانوالہ پر قبضہ کرنے کے لیے موضع کھیلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کھیلی کے سکھوں اور ایرائیوں نے مل کر اس کو موضع کھیلی سے دوڑا دیا۔ گوجرانوالہ اور اس کے گردونوا میں طوائف الملوکی اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ کوئی بھی سردار طاقتور نہ رہا اور ہر محلہ میں الگ الگ حکومت قائم ہو گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا چڑت سنگھ کے آباء و اجداد کی موضع کھیلی میں کچھ جائیداد تھی، لیکن چڑت سنگھ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے طاقتور رشتہ داروں سے تنگ آ کر اپنے ننہال موضع راجہ سانسی ضلع امرتسر میں چلا گیا۔ اس نے وہیں پرورش پائی۔
होश संभाला तो उसे जायदाद वापस लेने का ख्याल आया। चड़त सिंह उन पर मगर ज़हीन था। उसने पंजाब में तवाइफ अल-मुलूकी देखी तो उसे एक सिख रियासत कायम करने का ख्याल आया। उसने राजा सांसी में डाकुओं, कज़्ज़ाकों और लूट मार करने वालों का एक मुनज़्ज़म जथे बना लिया। वो ज़िला अमृतसर और गुजरात के देहात में दूर दूर तक इस जथा के जरिए लूट मार करता रहा और अपनी ताकत बढ़ाता रहा। जब वो काफ़ी ताकतवर हो गया तो उसने अपनी जायदाद वापस लेने के लिए राजा सांसी से मौज़ा खीली का रुख किया। मौज़ा खीली पहुंचकर इसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि वो इसकी जायदाद वापस कर दें वरना वो उसे ताकत के जरिए हासिल कर लेगा। बात बढ़ गई और नौबत खून खराबा तक पहुंच गई। एक रवायत के मुताबिक चड़त सिंह के रिश्तेदार मौज़ा खीली के एक दरवेश हज़रत शाह जमाल नूर के मुतक़िद थे। उन्होंने हज़रत शाह जमाल से तमाम सूरत हाल बयान की और इमदाद के तालिब हुए। हज़रत ने इन लोगों से कहा कि वो चड़त सिंह की जायदाद उसे वापस कर दें, क्योंकि चड़त सिंह की नस्ल से एक लड़का होगा जो इस मुल्क का बादशाह होगा और सिखों की एक मजबूत हुकूमत कायम करेगा। चुनांचे इस मुसलमान बुजुर्ग की मुदाखलत से खून खराबा रुक गया और चड़त सिंह को उसकी जायदाद वापस मिल गई। चड़त सिंह ने मौज़ा खीली में अड्डा कायम करने के बाद इर्द गिर्द के इलाकों में ताख्त व ताराज शुरू कर दी। उसकी क़ियादत में सिखों की एक मजबूत जमीयत कायम हो गई। चड़त सिंह ने गुजरावाला के शुमाल में एक कलानुमा हवेली तैयार की और इसमें अपने साथियों को आबाद करना शुरू कर दिया। उसने मौज़ा खीली में बाकायदा तौर पर कचहरी बना ली। बाद में मंडी में एक पुख्ता कचहरी बनवाई और इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्जा करके बाकायदा तौर पर अपनी रियासत की दाग बैल डाली। चड़त सिंह ने ज़िला गुजरावाला में दूर दूर तक हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो गुजरावाला में गोजरों की अक्सरियत से बहुत ज़्यादा परेशान था। इसे हर वक्त ये फिक्र दामनगीर रहती थी कि गोजर जाट गुजरावाला में बगावत करके दाखिली तौर पर उसके लिए शदीद मुश्किलात ना पैदा कर दे। इस दौरान में ज़मींदारान गोतबाजी खान ने लूट मार का सिलसिला शुरू करके अर्द गिर्द के देहात को लूटना शुरू कर दिया तो मौज़ा खीली और कई दूसरे देहात के सिख सरदारों ने चड़त सिंह से फैसला कुन अक़दाम की अपील की। सिख कबाइल और जत्थों की हिमायत हासिल होते ही इसने गोजर जाटों के मोहल्लों और घरों को लूटना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ लूट मार तक ही महदूद ना रहा, बल्कि इसके सिपाही गोजरों के घरों में दाखिल हो जाते थे और लड़कियों और औरतों को ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाते थे। गोजर चड़त सिंह की उन कार्रवाइयों से सख्त परेशान और सरासीमा हो गए और उन्होंने गुजरावाला से हिजरत करना शुरू कर दिया। गोजरों के सैकड़ों खानदान गुजरात में जा आबाद हुए। गोजरों की हिजरत के बाद चड़त सिंह को यह मौका मिल गया कि वो खुल खेले। उसने पूरे ज़िला गुजरावाला पर हमला करने के लिए चट्ठा भट्टी और तारड़ रियासतों के खिलाफ मरका आराई शुरू कर दी। मुसलमानों की उन छोटी छोटी रियासतों में सबसे मजबूत चट्ठों की रियासत थी। चड़त सिंह ने चट्ठों पर कई हमले किए लेकिन वो चट्ठों को कमज़ोर और ख़त्म करने में कामयाब ना हो सका। चड़त सिंह ने सिख रियासत कायम करने के लिए जो ज़बरदस्त मंसूबा तैयार किया था वो इसकी ज़िंदगी में तकमील तक ना पहुंच सका, लेकिन उसने अपनी औलादाल के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा छोड़ा जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए इसके बेटे महान सिंह ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। सरदार महान सिंह के ज़माने में गुजरावाला में मुकीम गोजर जाटों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया और वो एक एक करके हमेशा के लिए इस कस्बा को छोड़ गए जिसको बनाने और बसाने के सिलसिला में उनके आबा व अजदाद ने बहुत मेहनत की थी। सिखों ने जहां बहुत से कस्बात और देहात के नाम तब्दील कर दिए थे, मुमकिन है इन्हें इस कस्बा के नाम की तब्दीली का ख्याल भी आया हो, मगर गोजरनवाला का नाम तारीखी हकीकत बनकर जगमगाता रहा। सैयद नगर इस दौर में गुजरावाला का अमीर तरीन कस्बा था। इस कस्बा में असलहा साजी की सनत जोरों पर थी। सैयद नगर शमशीर साजी और बंदूकें तैयार करने का अहम मरकज़ था। इसके बाशिंदे बहुत अमीर थे। सैयद नगर में मुसलमानों की पुख्ता हवेलियां और मसाजिद थीं। सिखों ने सैयद नगर पर हमला करके उसे लूट लिया। सैयद नगर के बाशिंदे महान सिंह के हुक्म से अपना आबाई कस्बा छोड़ के गुजरावाला में आबाद हो गए। गुजरावाला में उन्होंने एक अलग महल्ला आबाद किया जिसका नाम उन्होंने सैयद नगरी रखा। सैयद नगर की लूट मार के दौरान में सिखों के हाथ बहुत सा असलहा और जंगी साजो सामान लगा, जिससे इनकी कुव्वत में मजीद इजाफा हो गया। चड़त सिंह की मौत पर उसकी रानी ओसाहे ने अपने नौम्र बेटे महान सिंह की तरफ से रियासत पर खुद काबिज होकर हुकूमत खुद संभाल ली।
महान सिंह की उम्र उस वक्त 7 या 10 बरस की थी। जब महान सिंह जवान हुआ और अपना नेक व बद पहचानने लगा तो उसने कुछ बारी और मशकूक बातों की बना पर अपनी मां को कत्ल करके एक तरफ किया और हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब वो अपने हमराही सिख सरदारों की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसने अपनी दानाई और हसन इंतज़ाम से इस हद तक अपना असर व रसूख बढ़ाया कि तमाम सिख सरदारों ने इसे अपना सरबरा तस्लीम कर लिया। गर्दो पेश में उसकी कुव्वत की धाक बैठ गई। अब वो जिस तरफ भी रुख करता कामयाबी उसका साथ देती। महान सिंह ने अपने बाप चड़त सिंह के ख्वाब को शर्मिंद ताबीर करने के लिए बहुत काम किया। इसका बाप चड़त सिंह गुजरावाला तहसील के शुमाली हिस्सा का निस्फ इलाका फतह कर चुका था। ये हकीकत है कि सुक्रचकीय सरदार कभी भी साहंसी और गोजर जाटों का डट कर मुकाबला न कर सके। बारे खान के फौत हो जाने के बाद वड़ाइच कबीले ने, जो साहंसी जाटों का जानी दुश्मन था, गुजरावाला के करीब आखिरी मुकाबला किया। इस मुकाबला में वड़ाइच कबीला को शिकस्त हुई, मगर सांसी जाटों को बहुत बाद में पता चला कि यह कबीला इस घोड़े की मानिंद है जिस पर सवार का होना शर्त अव्वल व आखिर। क्योंकि वड़ाइच कबीला ने इस वक्त तक अपने हरीफ का पीछा न छोड़ा जब तक कि एक तीसरी ताकत यानी सिख जिला में हुक्मरानी करने लगे। राजा महान सिंह ने एक जबरदस्त फौज तैयार की। इस फौज की कई रुजमेंटें थीं। उसने बाकायदा फौज के अलावा कज़्ज़ाकों और डाकुओं के जत्थे भी मुनज़्ज़म किए और उन्हें खिली छठी दी कि वो जिस गांव को चाहे लूट ले। तारीख की वरक गर्दानी करने से मालूम होता है कि राजा महान सिंह ने सिख फौज की तरबियत के लिए बाज़ फ्रांसीसी फौजी अफसरों को भी अपने यहाँ मुलाजिम रखा। उसने बाकायदा तौर पर सिख सल्तनत की दाग बैल डाल दी और इसे चट्ठों, भट्टियों, तारोहे के अलावा अपने बाज़ सिख हरीफों से भी लड़ना पड़ा। महान सिंह को बाज़ ऐसे सिख और हिंदू सरदारों की ताइदो हिमायत भी हासिल हो गई जो फौजी एतबार से बड़े मजबूत और अच्छी कुव्वत के हामिल थे। इनमें सिंधु खत्री, वसा सिंह और हरी सिंह निलवा जैसे जाबिर व जालिम सिख सरदार भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी फतूहात से सिख सल्तनत को बड़ी वसअत दी। महान सिंह के हमलों ने भट्टियों और चट्ठों को कमज़ोर बना दिया। चड़त सिंह से लेकर रंजीत सिंह तक तमाम सिख सरदार जिन मुस्लिम कबाइल से बरसर पैकार रहे, इनमें चट्ठे खास तौर से काबिल जिक्र हैं। चट्ठों की इस्तिकामत व अजीमत का नाकाबिल फरामोश दास्तान अलहदा बाब की सूरतें में शामिल तारीख है। महान सिंह की मौत के बाद इसका बेटा रंजीत सिंह इसका जानिशीन मुकर्रर हुआ। उस वक्त रंजीत सिंह की उम्र 10 साल की थी। रंजीत सिंह जवान हुआ तो उसने गुजरावाला को दाराल हुकूमत करार देते हुए सिख सल्तनत के क़याम का बाकायदा ऐलान किया। शुरू का कुछ अरसा इसने महाराजा की हैसियत से गुजरावाला में ही गुजारा और फिर लाहौर को अपना दारुल सल्तनत करार देते हुए वहां मुंतकिल हो गया। महाराजा रंजीत सिंह ने गुजरावाला में अपने क़याम के दौरान इस शहर को खूबसूरत बनाने के कई अहकाम जारी किए। महाराजा रंजीत सिंह के जर्नैल हरी सिंह निलवा ने इस जगह, जिसको कच्ची कहते हैं, पर एक कला तामीर कराया। इस कला की ड्योड़ी इस जगह थी जहां इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरावाला का सदर दरवाज़ा है। इस कला की बुनियादों के आसार अब भी मौजूद हैं। अगर कच्ची के इलाका की खुदाई की जाए तो बहुत से तारीखी नवादिरात बरामद हो सकते हैं और बहुत सी तारीखी मालूमात मंजर आम पर आ सकती है। मौरखीन ने गुजरावाला के महल वकू पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि पुराना गुजरावाला कच्ची के इलाके में आबाद था और शमल्लन जनोबन फैला हुआ था। सिख दौरे इक़्तिदार में कच्ची को सिविल लाइन की हैसियत हासिल थी, क्योंकि बहुत से सिख अफसरों और सरदारों की हवेलियां इसी इलाका में तामीर थीं। लेकिन अब कच्ची के निशेब में गंदगी और गलाजत के ढेर फैले हुए हैं। महाराजा रंजीत सिंह के बाद जब महाराजा खड़क सिंह ने सिख हुकूमत की बागडोर संभाली, इस वक्त हरी सिंह निलवा मर चुका था। इसके बेटों अर्जुन सिंह और जवाहर सिंह के माबैन कला पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त झड़पें हुई। हरी सिंह निलवा की बेवा उसाहे अपने बेटे अर्जुन सिंह को लेकर इस कला में कला बंद हो गई। हरी सिंह निलवा के दूसरे बेटे जवाहर सिंह ने कला पर कब्जा करने के लिए महाराजा खड़क सिंह से मदद मांगी। महाराजा के हुक्म से सिख फौजों ने निलवा के कला पर धावा बोल दिया। ओसाहे और अर्जुन सिंह ने शाही फौजों का मुकाबला किया, लेकिन ओसाहे को शिकस्त हुई और जवाहर सिंह ने शाही फौजों की मदद से कला पर कब्जा कर लिया। महाराजा खड़क सिंह के हुक्म से ओसाहे और अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करके जिला सियालकोट के कस्बा सतरा में नजरबंद कर दिया गया।
कुछ अरसा बाद महाराजा खड़क सिंह के हुक्म से ये किला मिस्मार कर दिया गया। गनाहे वाला बाजार में जवाहर सिंह की एक बहुत बड़ी हवेली थी। इस हवेली में अदालत भी लगती रही। अब वो हवेली तो मौजूद नहीं, अलबत्ता दिल्ली जवाहर सिंह मौजूद है। महाराजा रंजीत सिंह बहुत बातदबीर हुक्मरान था। इसकी हुदूद सल्तनत कश्मीर से पेशावर तक फैली हुई थी। वो अफगानिस्तान की सियासत और हुकूमत पर भी असर अंदाज होता रहा और उसने बरतानवी हुकूमत से भी बराबर की सतह पर ताल्लुकात खुशगवार रखे। उसने चट्ठों के अलावा हाफिजाबाद के भट्टी कबाइल की कुव्वत का भी खात्मा किया। उसने अपने हरीफ सिख सरदारों का जोर भी खत्म किया और एक वक्त ऐसा आया कि तमाम कुव्वतों ने इसकी सल्तनत और इक़्तिदार को तस्लीम कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह गुजरावाला में पैदा हो अलिफ, लेकिन उसकी तामीर व तरक्की के लिए वो कुछ न कर सका जो उसे करना चाहिए था। वो न सिर्फ यहाँ पैदा हुआ बल्कि डिप्टी कमिश्नर मिस्टर हिंसन के बकौल उसने अपनी जवानी का बेशतर वक्त भी यहीं गुजारा था। रंजीत सिंह लाहौर में कब्जा करने तक गुजरावाला में ही रहा और यहीं से अपनी हुकूमत का इंतज़ाम चलाता रहा। लाहौर की फतह और वहाँ मुंतकली तक गुजरावाला सिख हुकूमत के दारुल हुकूमत के तौर पर मरूफ रहा। महाराजा रंजीत सिंह ने एक खूबसूरत बाग में अपने वालिद राजा महान सिंह की समाधि बनवाई। इस बाग के इर्द गिर्द 4 दीवारी थी। समाधि का इर्तफा 90 फुट था। इसके अलावा इस बाग में रंजीत सिंह ने एक खूबसूरत बारादुरी भी बनवाई जो अब तक मौजूद है। 1872 में अंग्रेजों ने इस बारादुरी में शिफाखाना कायम कर दिया जो काफी अरसा तक इस इमारत में मौजूद रहा। फिर इनकलाबात ज़माना और ज़रूरियात के मुताबिक इस बारादुरी में मुख्तलिफ महकमों के दफातर भी कायम रहे। पाकिस्तान बनने के बाद इस इमारत में म्यूनिसिपल लाइब्रेरी थी, लेकिन अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस लाइब्रेरी के लिए अलहदा इमारत बना दी है और बारादुरी और समाधि महकमा औकाफ की तहवील में चली गई है। महाराजा रंजीत सिंह के बाद इसके वारिस इसके इस्तेहकाम और अजमत को बरकरार न रख सके और अंग्रेजी इक़्तिदार ने सिख हुकूमत को हड़प कर लिया। हुकूमत बरतानिया ने बाद में पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज दून हुकूमत में जिन शख्सियात ने इस शहर की तामीर व तरक्की के सिलसिला में ख़ास किरदार अदा किया उनमें कर्नल क्लार्क और मिस्टर आर्थर ब्रांटे ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। कर्नल क्लार्क गुजरावाला के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने बाज़ नई इमारत और दरवाजे तामीर कराए। कर्नल क्लार्क ने हवेली महान सिंह को मुनहदिम करवा दिया और इस जगह एक मुरब्बई बाजार तैयार कराया और उसका नाम रंजीतगंज रखा। ये बाजार बड़ा खूबसूरत था। महान सिंह की हवेली एक कला नुमा इमारत थी। इसमें सिखों का शाही खानदान आबाद था और इस हवेली के करीब ही सब्जी मंडी की तरफ एक कला नुमा बाग था जिसे हुजूरी बाग के नाम से पुकारा जाता था। इस बाग में सिख रानियां और शहजादियां आकर ठहरा करती थीं। कर्नल क्लार्क ने इस हवेली को मिस्मार करा दिया और इस जगह मुरब्बा बाजार बनवा दिया। गुजरावाला के एक और डिप्टी कमिश्नर मिस्टर आर्थर ब्रांड्रथ ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरानी इमारत के खंडरों पर कई इमारत तामीर की। उन्होंने गुजरावाला में खीली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा और सियालकोटी दरवाज़ा तामीर कराया। इन दरवाज़ों में से सियालकोटी दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा और ब्रांड्रथ मार्केट अब भी कायम है, लेकिन खीली दरवाज़ा मुनहदिम हो चुका है। इसके महज आसार ही तलाश किए जा सकते हैं। गुजरावाला में अफगान दुल इक़्तिदार की यादगार एक मस्जिद भी है। इसे शेर शाह सौरी की मस्जिद कहते हैं। इसके मुतालिक कहा जाता है कि शेर शाह सौरी ने रहतास की तरफ जाते हुए जब गुजरावाला में क़याम किया तो अपनी क़यामगाह के करीब एक मस्जिद तामीर कराई। ये मस्जिद अफगान तर्ज़न तामीर का नमूना है और कराउन फोंड्री के अक़ब में वाक़े है। गो ज़माना की दस्तबुर्द से इस मस्जिद की खूबसूरती तो कायम नहीं रही, लेकिन मस्जिद अब भी मौजूद है। अगरचे इस मस्जिद की तामीर खास कर कुशादा और वसी गुंबद मीनार वगैरह इस गुमान को तक़वियत देते हैं कि ये मस्जिद शेर शाह सौरी के अहकाम की मरहून मिन्नत है, लेकिन शेर शाह के अहद के मौरिख़ इस मामला में बिल्कुल खामोश हैं। अलावा अज़ीं इस मस्जिद के वाज़े नकूश मरम्मत की वजह से मिटते जा रहे हैं और उसके अक़ब में जो कुनवा था वो भी भरा जा चुका है, वरना इसमें से तख्ती का मुताला करने के बाद आसानी से नतीजा बरामद किया जा सकता था कि ये किस अहद में तामीर हुई। ज़िला गुजरावाला मर्तबा डायरेक्टर तालीमात पंजाब 1904 गुजरावाला से मुताल्लिक़ ये मालूमात हासिल हुई है। गुजरावाला ज़िला का सदर मकाम है।
اس میں 25,785 آدمی رہتے ہیں۔ شہر کسی قدر بلندی پر بنا ہوا ہے۔ اس کے گرد ایک دیوار ہے جس میں 11 دروازے ہیں، کئی باغ ہیں اور قرب و جوار کا علاقہ دور دور تک درختوں سے پر ہے۔ بازار پختہ، صاف ستھرے اور رونق دار ہیں۔ صفائی کا انتظام میونسپل کمیٹی کے ماتحت ہے۔ میونسپل بورڈ سکول کے پاس مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا سردار چٹ سنگھ کی سمادھی ہے۔ دیوار کے اندر سردار مہان سنگھ کا باغ ہے۔ اس میں ایک بارہ دری ہے جہاں اب کتب خانہ ہے اور جلسے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ کتب خانے کے متعلق ایک اور پاس کے مکان میں چھوٹا سا عجائب گھر ہے۔ گجرانوالہ کے قریب ہی ایک بڑا خوبصورت اونچا مینار تھا۔ یہ عمارت سب عمارتوں سے مشہور اور دلکش ہے۔ مہان سنگھ کی سمادھی اس میں ہے۔ برانڈرت صاحب نے جو اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر تھے، اس پر سونے کا کلش چڑھایا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ لاہور میں فوت ہوئے اور وہیں ان کی سمادھی بنائی گئی، مگر گجرانوالہ ان کا وطن ہونے کے باعث اس راکھ کا کچھ تھوڑا سا حصہ یہاں بھیجا گیا جو مہان سنگھ کی سمادھی کے پاس دبایا گیا۔ کہتے ہیں جس عمارت میں اب بورڈ سکول کی ایک شاخ ہے وہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی گجرانوالہ کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔